The reading that we are going to do today is Raghuram Rajan's article. It's not an article, it's the forward of the book or the introduction of the book, Fault Lines. Now, this particular article or this particular book was written right after the global financial crisis. कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ओरिजिन्स को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ओरिजिनेट हुआ and the reasons behind it and what needs to be done so that such a crisis does not emerge. This is the kind of line of thought with which the book is written. So first it kind of identifies what are these fault lines. So these fault lines are metaphor for basically where cracks develop in the system. सो वाई आर दीज क्रैक्स डेवलपिंग. तो यहाँ पर जियोलॉजी से ये टर्म लिया गया है वेयर यू हैव दीज फॉल्ट लाइन्स इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड बेसिकली यहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे से क्लैश करते हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है. सो वाई आर दीज फॉल्ट लाइन्स देयर इन द ओवरऑल ग्लोबल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, एंड are these fault lines still there with us even after the crisis, and what needs to be done to basically resolve this kind of a system. तो हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखना है. This article is quite important from your examination point of view also. Then the other two articles that we will be covering in tomorrow's session will be Danny Roderick's article on globalization, and then we have another article by Abhijit Banerjee and Dilip Mukherjee, understanding poverty. So these are the three topics that I intend to do by tomorrow. So we'll be covering this today. We'll be covering this particular reading, and tomorrow we will be covering these two readings. Fine. Then apart from that, what I also feel from your syllabus, I think यहाँ पर लुइस मॉडल वगैरह जो आता है देवराज रे का, उसके अंदर डू दैट लुइस मॉडल एंड ये जो आपके लेबर मार्केट मॉडल्स हैं, एंड आई थिंक हैरिस टोडारो मॉडल अभी भी है आपके कोर्स में या नहीं है? Migration, is that in your course? Yes, sir. That's also another topic which is quite that's also an important topic. मेरे टाइम से ही important होता था. So I'll not be able to cover that with the time frame that we have, but at least this particular unit you can rely on the sessions that we are going to have. Fine. So let's start our reading. Where are we? So let's start with this particular introduction of the book, Fault Lines, and why are these geological cracks, as a metaphor, why are these cracks there in the financial system? So first of all, why did the US financial crisis emerge in general? And what we will learn across this particular lecture is that even after the global financial crisis, these fault lines still remain, and a part of this is because of politics that is practiced throughout the world, and कुछ economic regulators के ऊपर भी बातें हैं. Then let's just first start with the origin की financial crisis. We all know now that 2007 में September में Lehman Brothers collapsed, but people had started Ayushi, I'm already recording the lecture. So this particular financial crisis was foreseen at least 2-3 months ago as well. So June July से लोगों को पता था कि that there is this pending crisis which is coming. However, Raghuram Rajan had given a speech in 2005. So there is this convention where all these all central bankers meet, and in that convention, Jackson Hole Conference 2005. So this was one of the conventions जहाँ पर सारे के सारे economists, major world economists and federal bank reserves are अलग central bank के governors, all of them come together, and then they discuss about the financial sector and how
how can we develop it even further. तो ये सारी discussions होती थी. एंड दिस वॉज सपोज टू बी 2005 की जो इनकी जो जैक्सन होल जो कॉन्फ्रेंस थी, दैट वॉज सपोज टू बी द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन. दिस इज़ अ वेरी फेमस नेम, एलन ग्रीनस्पैन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं ये यूएस इकोनॉमिक्स के अंदर. एंड इट वॉज हिज लास्ट ईयर एज फेडरल रिजर्व चेयरमैन. And everyone had come there to basically shower that how great a Federal Reserve chairman has been and his contribution in economics. However, on that note, instead of kind of giving him a very good farewell or a very oratory kind of valedictory speech, what Raghuram Rajan talked about was a particular article that he had discussed or a particular paper that he had presented. Has the financial development made world riskier? So उनका जो पेपर था that ran completely against what was practiced by the Federal Reserve Chairman. तो इनकी जो पूरा पेपर था वो बात कर रहा था कि कैसे प्रॉबली जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है यूएस का वो ज़्यादा रिस्की हो गया है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इनोवेशंस दैट हैज़ हैपन. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट riskiness is what you have also understood, you might have also read in the MFM paper, securitization. Now what was this securitization? If you remember, सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हम कई तरीके के एसेट्स को एक साथ, कई तरीके के लोन्स को एक साथ ले आते थे, उसकी एक सिक्योरिटी बना देते थे और उसको हम आगे बेच सकते थे. ट्रेडिशनल जो सोर्स होता था, ट्रेडिशनल सोर्स बोरोइंग और लेंडिंग के अंदर, अगर किसी ने बोरो किया हुआ है पैसा और ये बैंक है, सपोज दिस इज़ द बोरोवर जिसने कार लोन लिया है एंड दिस इज़ द बैंक, तो ट्रेडिशनल सोर्स के अंदर ये पैसा जो है बैंक का अटक जाता था बहुत टाइम तक. सपोज़ ये 5 साल या 7 साल का लोन है, तो ये 7 साल के लोन जो है ये इसके बैंक्स के बाद उसके एसेट्स में अटक गया है, ये इलिक्विड हो गया है, ठीक है. बट सपोज अगर ये पर्टिकुलर बैंक, व्हाट इट डज इज दैट इट काइंड ऑफ ये वाला लोन और भी कुछ कार लोन्स प्लस साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड लोन्स. अब बैंक लोन जो है वो 7 साल, कार लोन जो है वो 7 साल का है, क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो 1 साल का है. इनको एक साथ कंबाइन करके एक सिक्योरिटी बना दी और उस सिक्योरिटी को आगे इस बैंक ने आगे किसी और को बेच दिया. तो वो बेचने का क्या फ़ायदा हो गया कि ये सारे के सारे लोन्स जो हैं, जो एक स्टेशनरी आइटम उसके एसेट्स में बैठ गई थी, नाउ इट हैज़ मेड इट लिक्विड और इसको आगे अब बेच सकते हो. इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो, इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की आप रेटिंग ले सकते हो और आगे जाके किसी भी और को बेच सकते हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बेच सकते हो. तो हो सकता है कि यहाँ पर एक कार बोरोवर हो, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बोरोवर हो, यहाँ पर एक स्टूडेंट बोरोवर हो, यहाँ पर एक हाउसिंग लोन वाला बोरोवर हो. इन सारे बोरोवर्स को आपने जोड़ लिया, उसकी एक सिक्योरिटी बना दी, उसको आपने बैंक 1 ने बैंक 2 को बेच दिया, बैंक 2 ने बैंक 3 को बेच दिया, बैंक 3 ने आगे, सपोज ये यूएस का पूरा सिस्टम है, बैंक 3 ने आगे जाके इसको यूरोप के किसी यूरोपियन यूनियन के किसी बंदे को बेच दिया, इसने आगे किसी इंडिया के बंदे. सो अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ दिस इज़ चेंजिंग हैंड्स. एंड जो भी बेच रहा है वो अल्टीमेटली कुछ फीस रख रहा है और आगे बेच रहा है. सो दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, कि सिक्योरिटाइजेशन से अब बैंक्स के पास जब इसने एसेट अपना आगे फॉरवर्ड कर दिया तो इसके पास वापस इसका लोन बुक खुल गया, ये अब नए लोगों को फिर से लोन दे सकता है और लोगों को लोन दे सकता है. सो इसकी वजह से क्रेडिट साइकिल बढ़ रहा था, इसकी वजह से इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए थे. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस वॉज ऑल्सो मेकिंग द वर्ल्ड मच मोर रिस्कियर इन द सेंस कि यहाँ पर यू नीड टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इन दिस सिक्योरिटी. अब यहाँ पर जब आपने सिक्योरिटी बना दी और सिक्योरिटी में कहा कि इतने हाउसिंग लोन है, इतने स्टूडेंट लोन है, इतने इसके अंदर क्रेडिट कार्ड लोन है और इतने कार लोन्स हैं, नाउ यू नीड टू रैंक ऑल ऑफ देम वेल एंड यू नीड टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सो दैट वाज एट टाइम्स जो है वो मार्केट में मिसिंग था. और अल्टीमेटली इसके पीछे अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये सिक्योरिटी बन गई बहुत सारे लोगों के लोन लेने की वजह से. बट जो लोग लोन ले रहे हैं
आर दे गुड इनफ बोरोवर्स? अगर अब बैंक्स का, अब इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में सोचो, इस बैंक का इंसेंटिव क्या रह गया है? ये बैंक अल्टीमेटली इनसे तो पैसे ले नहीं रहा है, ये तो आगे इनसे पैसे, इनको पैसे दे रहा है और सिक्योरिटी बना के इसको आगे बैंक टू को बेचता है। अब इस बैंक की हेडेक हो गई कि ये बंदा पैसे देगा कि नहीं देगा। इसने आगे थर्ड बैंक को बेच दी सिक्योरिटी, अब इस बैंक की हेडेक हो गई कि ये बंदा पैसे पे कर रहा है नहीं पे कर रहा। इसने यूरोपियन यूनियन के बंदे को बेच दिया, अब इस बैंक की हेडेक हो गई कि ये बंदा बेच रहा है नहीं बेच रहा। सो दिस द ओरिजिनल बैंक इज नाउ रिड ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वेदर दिस पर्टिकुलर बोरोवर वॉज अ गुड बोरोवर और अ बैड बोरोवर, टिल द पॉइंट कि उसको अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिल जाती है। सो यहाँ पर परवर्स इंसेंटिव्स बनने शुरू हो जाते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड इन दिस रीडिंग व्हाई दीज परवर्स इंसेंटिव्स वर क्रिएटेड ओवर टाइम। कुछ रीजंस हैं कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो स्क्यूड है, कुछ रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं, कई रीजंस हैं कि व्हाई such incentives were created in the first place, where these particular entities or these particular financial institutions were giving loans to people who actually did not deserve. तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है इट हैड लॉस्ट कंप्लीट मॉरल कंपस, and that led to this particular crisis. And it is not just this particular securitization. ये तो securitization एक पार्ट है जिसको हम मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी, सपोज अगर आपने कार लोन लिया है तो आपका कार जो लोन है वो लियन पे है बेसिकली। आपकी कार आपकी तब तक नहीं है जब तक आप उस पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे करते थे। वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, या फिर जिससे आपने जिससे आपने लोन लिया है वो उस कंपनी की। दिस securitization allowed banks to get the risky loans off its book. At the same time, it allowed long-term investors in the market such as pension funds and insurance companies to take on small portions of this risky claim. But the problem was कि ये जो इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स ये जो एसेट्स खरीद रहे थे, ये जो सिक्योरिटीज़ खरीद रहे थे, उनको यही नहीं पता था ये सिक्योरिटीज़ अच्छी हैं कि अच्छी नहीं हैं। तो सपोज़ आपने अपनी ज़िंदगी का पेंशन जो है इस एक फ़ंड में लगाया हुआ है, और वो पेंशन फ़ंड जो है वो बिना देखे समझे किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देता है और वो सिक्योरिटी डूब जाती है, तो आपकी पेंशन भी तो चलेगी। So that is how millions of people in US and across the world, because of this financial crisis, lost their livelihood, and पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स लोगों ने लूज कर दी थी। इन जनरल दिस पर्टिकुलर आइडिया वॉज वेरी स्मार्ट कि अच्छा एक काम हम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एसेट्स, जो हमारे पास लोन्स पड़े हुए हैं, इसको डिस्पर्स कर देते हैं, आगे किसी और को पास ऑन कर देते हैं, फिर हमारे पास और पैसा आ जाएगा, और फिर और पैसा आ जाएगा तो बैंक्स किसी और को लोन दे सकते हैं। सो अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज और जैसे LIC जैसी कंपनीज हैं, उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो अगर उसके पास इतना पड़ा हुआ है तो वही एसेट कुछ खरीद सकता है। उसके पास लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी है, और उनके पास डाइवर्स पोर्टफोलियो भी है, तो दे कैन ईजिली होल्ड सम ऑफ दिस काइंड ऑफ एसेट्स एज वेल। और क्योंकि अब रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, पहले रिस्क क्या है सिर्फ एक बैंक के पास है, अब रिस्क जो है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है बोरो का। सो इन योर इवन दैट क्वेश्चन वाज इवन आस्क्ड इन योर MFM एग्जाम कि व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द बोरोवर। बोरोवर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको अब लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट जस्ट बिकॉज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चीप डज नॉट मीन कि यू शुड टेक इट। जस्ट बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आज की डेट में कम हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 5 करोड़ का घर खरीद के बैठ जाऊँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ भी सकता है बाद में, तब मैं क्या करूँगा। सो therefore this in theory all of this worked well, but in actual practice this did not work well, and that is what we will see in this particular reading. So in theory this was working well, but the theory assumes ceteris paribus, other things being constant. But what we will see is that because of deregulations and development like securitization had increased competition and created increased incentives for bankers to take on more complex form of risks, and that is what led to this particular financial crisis. So उसी पूरी डिबेट है कि उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, वो सारी चीज़ें हैं, बट लेट्स
So this is where the reading actually starts from, where it mentions that it is I mean what was the reason for the crisis and what all are the fault lines, यहाँ से वो शुरू होता है. इससे पहले की जो डिबेट है वो पूरी डिबेट इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट डिड रघुराम राजन से एंड व्हाई वाज ही अपोज्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर जैक्सन होल conference. What was the root of the crisis? The root of the crisis was that in late 1990s बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या करना शुरू किया. एक तो उनकी इकोनॉमीज़ जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट देयर सरप्लस टू जहाँ पर भी कोई डिमांड करने के लिए रेडी था. सो कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, ऑयल रिच कंट्रीज़, जापान, इन कंट्रीज़ के पास एक्सेस सेविंग्स पड़ी हुई थी. अब ये एक्सेस सेविंग्स ये ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें. एंड इन्वेस्ट करने के लिए दे सॉ कि अच्छा हम ये देखते हैं कि कहाँ किस किस कंट्री में हमारे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो रही. सो दे वर लुकिंग फॉर दोज काइंड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है. तो strategically world trade was based on this particular premise that there were savers, there were these particular countries जिनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं थी. क्योंकि इनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं थी, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइनेंसिंग ग्लोबल, और उस ग्लोबल कंजम्पशन बैंड वैगन में यूएस सबसे ऊपर है. आई टेल यू ऑल्सो वाई यूएस वॉज सो हैप्पी टू कंज्यूम मोर, क्योंकि उसके भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं विच वी विल गो इनटू दैट. कैसे पॉलिटिशियंस का सिर्फ ये काम था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए और लोगों को एटलीस्ट ये फील ना हो कि हम घर अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उनका ये पर्पस था कि क्रेडिट जो है वो चीपर रेट पे मिलता रहे लोगों को. एंड टिल द पॉइंट दैट पीपल आर हैविंग ईजी क्रेडिट दे विल वोट फॉर अस. So that was the kind of scenario, or that was the kind of political setting in which US was kind of promoting excess consumption. Now because of this excess consumption, a lot of companies especially in US went on an investment spree 1990s में, और इन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. And a lot of these technological companies went burst in 2001 के अंदर, जिसको हम यूएस में बोलते हैं .com बबल. बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया यूएस की. ठीक है, पूरी दुनिया में फॉर एग्जांपल जापान, जर्मनी, यू कैन टॉक अबाउट ऑयल रिच कंट्रीज़, ये सब ने यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और यूएस में कहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? यूएस में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया इन दीज टेक्नोलॉजिकल फर्म्स. एंड दीज टेक्नोलॉजिकल फर्म्स, अ लॉट ऑफ देम वर नॉट रियली स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल फर्म्स. कुछ बेकार बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. बहुत सारी ये फर्म्स बंद होनी शुरू हो गई, अ लॉट ऑफ देम क्लोज्ड. तो ये पूरा का पूरा जो बबल था ये क्रैश कर गया 2000. अब जब ये 2000 में बबल क्रैश किया तो अगेन जब भी कोई इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो फेडरल रिजर्व और बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राइज टू पुश इन मोर मनी, जैसे कोविड के टाइम पे इंडिया में भी किया और वर्ल्ड वाइड भी किया. So as the US economy slowed down, Federal Reserve went into overdrive and they started cutting the rate of interest. तो जैसा हमारा रेपो रेट है वहाँ पर उनका फेडरल रेट होता है, फेडरल रेट एकदम से काट दिया सो दैट इंटरेस्ट रेट्स जो है मार्केट में कम हो जाए. और इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी नो दैट कंपनीज विल इन्वेस्ट मोर. अगर कंपनीज विल इन्वेस्ट मोर तो जीडीपी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. This was the cycle that they were trying to achieve, a expansionary monetary policy through which they were trying to revive the economy. What essentially happened, instead of this reviving the economy, rate of interest जब कम हो गया, this gave an incentive to the financial sector. अब financial sector को क्या incentive मिल गया कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, एंड अब सबको एक ड्रीम होता है यूएस के अंदर, देयर इज ऑलवेज दिस, एवरी इंडिविजुअल हैज़ दिस ड्रीम कि हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर गोल होता है. यू टॉक टू एनी यूएस सिटीजन कि वी शुड हैव आवर ओन होम, और ये पॉलिटिकली भी इट्स अ वेरी critical issue for them. So what happened was that because the rate of interest were
very small, banks also went into an overdrive and they started lending huge amount of money to house owners कि आप आके घर खरीद लो. तो they started what is called as teaser rate. कि टीजर रेट ये होता है कि शुरू में रेट बहुत कम होगा. दे स्टार्टेड दीज टीजर रेट्स की कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले शुरू के 2 साल में, और बाद में आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मार्केट के अकॉर्डिंग हो जाएगा. नाउ दिस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड दीज यूएस कंज्यूमर्स टू बाय हाउसेस. और किस एक्सपेक्टेशन में? जब हाउसेस का डिमांड, जब ज़्यादा हाउसेस खरीदे जाएंगे तो हाउसेस का डिमांड बढ़ेगा, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो सपोज़ आपने $1,00,000 का घर लिया था और आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देना था, बट उस घर की प्राइस ही $100,000 हो गई. तो $100,000 पे आप अपना जो लोन है वो रीफाइनेंस करा सकते हो, क्योंकि आपके पास जो सिक्योरिटी है, जो आपका इनहेरेंट वैल्यू है आपके जो एसेट की, आपने तो $50,000 का खरीदा था, अब उसकी वैल्यू $1,00,000 हो गई. तो दैट मीन्स अब आप इसको रीफाइनेंस करा सकते हो, और रीफाइनेंस करा के आपके पास और पैसा आ जाएगा, तो इसका लोन चुका देना फिर उससे. सो दिस वॉज द इंसेंटिव थ्रू विच even people who could not afford a 50,000 or a $1 lakh house were buying these houses. So there was this sudden surge in housing prices and sudden surge in housing investment, which even came from segments of people with low credit ratings and impaired credit histories, जिनको हम बोलते हैं निंजाज. यूएस इकोनॉमी में उस टाइम पे बोलते थे निंजाज. नो इनकम, नो जॉब्स एंड एसेट्स. इट डज नॉट मैटर कि आपके पास एसेट है, इनकम है, कुछ भी है, आपको बैंक्स जो हैं वो पैसा दे देंगे. एंड द ओनली वे फॉर दीज पीपल टू पे बैक दीज लोन्स वॉज दैट द हाउसिंग प्राइसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दे कैन रीफाइनेंस their loans into lower rate interest mortgage. तो ये this was the entire cycle. Ultimately what happened was that एक टाइम के बाद this money was basically again जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा. ये पैसा फॉर एग्जांपल यूएस की जो हाउसिंग बबल है उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? जर्मनी में बैठा हुआ कोई डेंटिस्ट जो है वो भी फाइनेंस कर रहा है. क्यों? क्योंकि अब सिक्योरिटाइजेशन हो गया है. ये जो लोन है, सपोज आपने 3 बेकार ऐसे लोगों जिनको लोन नहीं देना चाहिए था उनको आपने करा, फिर उन्होंने 5 ऐसे लोगों को दिया जो शायद से लोन दे दें, और 4 ऐसे लोगों को दिया जो 100% लोन दे देंगे. इसकी एक सिक्योरिटी बनाई, उसका एक रिस्क असेसमेंट किया कि सपोज ये AA है, और उस सिक्योरिटी को आगे आपने से जर्मनी के बैंक में बेच दिया. जर्मनी के बैंक ने खरीद लिया, और जर्मनी के बैंक ने अपने ही एक सिटीजन को कह दिया कि ये सिक्योरिटी खरीद लो, ये AA रेटिंग है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% मिल रहा है, आप लेके बैठ जाओ इस सिक्योरिटी. इस तरीके से काइंड ऑफ अ डेंटिस्ट सिटिंग इन जर्मनी वाज काइंड ऑफ फाइनेंसिंग द सेंसलेस बोरोइंग दैट वाज गोइंग ऑन द सेंसलेस कंजम्पशन दैट वाज गोइंग ऑन इन यूएस. एंड दैट अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती थी कि आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं था टू नो वेदर दीज सिक्योरिटीज आर एक्चुअली गुड सिक्योरिटीज और बैड सिक्योरिटीज. Sophisticated US financial sector stepped in and securitization dealt with many of these concerns. If the mortgage was packaged together with other mortgage, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो था आपका हाउसिंग लोन है, ठीक है, उसको आपने कार लोन के साथ डाल दिया, क्रेडिट कार्ड लोन के साथ डाल दिया, स्टूडेंट लोन के साथ डाल दिया, और उसका एक एसेट बना दिया, और आपने उनको सिक्योरिटीज़ को रेट कर दिया AAA विच इज़ द सेफेस्ट, AA, BBB, BB. इस तरीके से आप सिक्योरिटीज़ को रैंक करते हो. तो आपने उसकी रैंकिंग दे दी, और फिर आप लोगों को कहा कि अच्छा अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप AAA रेटिंग ले लो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा, अगेन जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी उतना कम रिटर्न होगा, जितनी कम सेफ्टी होगी उतना ज़्यादा रिटर्न होगा. सो उस हिसाब से दे स्टार्टेड सेलिंग दीज सिक्योरिटीज. सो द यूएस फाइनेंशियल सेक्टर वाज thus bridged by the gap between over consuming and over stimulated US economy and under consuming and understated rest of the world. And this was the edifice of the entire housing market. This entire cycle came to an halt जब US ने फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया,
और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो एकदम से क्या हुआ, दीज पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिन्होंने लोन ले रखा था उनके पास इनकम इतनी नहीं थी, उनको पैसे देने पड़ रहे थे वापस। अब हाउसेस की, अब जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो डिमांड फॉर हाउसेस विल कट बैक, तो डिमांड ऑफ हाउसेस डिड नॉट इंक्रीज, इनफैक्ट डिमांड कम होने लग गया, तो एकदम से प्राइसेस कम हो गए। प्राइसेस कम हो गए तो आपने $50,000 का घर लिया था, $50,000 का घर लिया था, हो सकता है उसकी वैल्यू $25,000 ही रह जाए। तो दैट मीन्स आपने जब लोन लिया था तब तो आपने उसके हिसाब से लिया था, अब आपकी जब वैल्यू रह गई है घर की तो आप रीफाइनेंस भी कराओगे तो आपको और कम पैसा मिलेगा। सो दीज पीपल वर नॉट एबल टू पे बैक दिस लोन, एंड जब ये पे बैक नहीं कर पाएंगे, अब सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पीपल इफ दे डोंट पे बैक, देन वो पूरी की पूरी एसेट ही जो हमने यहाँ पर एसेट बनाया था 3 लोगों का, 4 लोगों का और 5 लोगों का, ये एसेट ही पूरा का पूरा फेल होना शुरू हो जाएगा। So that is exactly what started happening in the US market. The mortgage backed securities turned out to be much more riskier mortgage than previously advertised. Their values plummeted, and seemingly smart bankers were again holding on to a lot of these securities. कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ जो है वो बैंकर्स खुद लेके बैठे हुए थे अपने खुद के, सपोज बैंक 1 जो था हमारा, उसने वो सिक्योरिटी बैंक 2 को बेच दी, और बैंक 2 ने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है वो सिक्योरिटी, MBS मॉर्गेज बैच सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी तरीके की सिक्योरिटीज़ खरीद ली है बैंक 2 ने। अब बैंक 2 सिक्योरिटीज़ तो खरीदे जा रहा है ये सारी, बट उसके लिए पे भी तो करेगा ना सिक्योरिटीज़ जब खरीदेगा, तो इन सबको बैंक 2 क्या अज्यूम कर रहा है कि ये जो एसेट है, ये तो मॉर्गेज बैच सिक्योरिटी जो है ये तो लिक्विड है बहुत ज़्यादा, इसको मैं आगे जब चाहूँ इसको आगे किसी और बैंक को बेच सकता हूँ। बट इसने इस बहुत सारी MBS को खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म में पैसा ले लिया, तो शॉर्ट टर्म में ये आपने डेट, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डेट उठाया और ये सारी सिक्योरिटीज़ खरीदनी शुरू हो गई। एंड बिकॉज ये जो MBS है ये क्रैश करने शुरू कर दिए, तो इसीलिए पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का फेथ ख़त्म हो गया कि ये MBS जो है ये इनकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। एंड बिकॉज देयर वैल्यू प्लमेटेड, जितने भी लोगों ने बैंक्स को लोन दिया था उन्होंने कहा कि भैया मुझे पैसा वापस कर दो, एंड दैट इज़ वेयर द इंटायर साइकिल स्टार्टेड क्रैशिंग, that the people who had lent the money to the banks were now asking back their money, but banks did not have the capacity to pay it. That is what led to the US financial crisis. The result was that the short-term creditors panicked and refused to refinance the banks when their debts came due, and the banks failed. So the banks had also, again ultimately banks को अगर सिक्योरिटी खरीद के बेचने भी थी तो आगे बेच देता। बहुत सारे बैंक्स ने सिक्योरिटी खरीद के अपने पास रख ली, और ख़रीदी कैसे, शॉर्ट टर्म डेट से, और शॉर्ट टर्म डेट से खरीदी है तो अगर लोगों को लगेगा कि यार ये बैंक शायद से नहीं पैसा पे कर पाएगा, तो कहेंगे कि भैया मुझे वापस कर दो मेरा पैसा जो जिससे आपने सिक्योरिटी खरीदी, एंड बैंक्स वर नॉट एबल टू डू दैट, and that led to the crisis. So there were many questions which were unaddressed. One of the questions was why the flood of money came from outside the US for financing the subprime credit. So why was there so much of money coming from abroad? What was the reason because of that? Why did the Federal Reserve keep the rate so low? इतना rate of interest कम क्यों रखा था Federal Reserve ने? Why did financial firms give loans to people who had no income, no job, no assets, जिनको हमने निंजा लोन्स बोलते हैं? एंड लास्टली वाई डिड दीज बैंक्स, जिनको पता था कि ये सिक्योरिटीज़ ख़राब भी हैं, वाई डिड दे कीप सो मच ऑफ दीज सिक्योरिटीज़ विद देम? ख़राब चीज़ आप अपने पास क्यों रखोगे? These are the answers which this particular reading tries to find out. We were talking about why this financial crisis took place, and now we will be talking about what are the fault lines as identified by Raghuram Rajan. So Raghuram Rajan has identified 3-4 fault lines. The first fault line that he has identified, which basically led to this entire crisis. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्राइसिस जिसकी वजह से परपेचुएट किया, ओरिजिन किया, और आज तक प्रॉबेबली ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व नहीं हुई हैं, and this might lead to creation of another crisis in the coming times. So he'll be talking about the rising inequality and the push for housing credit. The second, he'll be talking about how these developed countries, especially countries like America, are dependent on the export-led growth
of countries like say China, countries like Japan, countries like Germany, जो basically जिनका जिनका domestic जो potential है वो limited होता है, so they start exporting, and जो US के जो citizens हैं they are actually consuming and propagating more of this dependency. तो ये जो साइकिल है ये अभी भी चल रहा है, and that is another fault line that still exists in the system. So the third thing that we will be talking about is the clash of the system. In clash of the system, we will see that across even in a globalized world, across countries there are very different financial systems that are there, and these financial systems are not compatible with each other जब वो एक दूसरे से interact करते हैं, और कैपिटल फ्लोज एक कंट्री से दूसरे फ्लो में कंट्री में जाता है, तो कई बार ये जो सिस्टम्स हैं एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, और वो अपने आप में एक इनएफिशिएंट पॉइंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, कि हर चीज़ बोरोअर लेंडर को जानता है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है. whereas in other countries, some countries से something like India, ये ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं होती है. So this is where the problem arises that आप किसी और कंट्री के अंदर पैसा भेज रहे हो जहां पर probably the financial transactions और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, और वहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. So that is another fault line which still exists in the framework of financial systems in a globalized world. And then we talk about the last thing, that how did this jobless recovery that had happened both in 1991 and in 2001. तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज दिस जॉबलेस रिकवरी, कि हमारी जो 1990 यूएस के अंदर 1991 एंड 2001 में जो रिसेशन आए, उसके बाद जो रिकवरीज हुई हैं, इकोनॉमिक रिकवरीज हुई हैं, उसमें जॉब्स बहुत क्रिएट नहीं हुई हैं. एंड क्योंकि जॉब्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पॉइंट, कि जॉब्स के अगर जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे बट इकोनॉमी अच्छी चल रही है, दैट कुड बी अ मेजर वोटिंग इशू. And therefore to stimulate more jobs, unfortunately US economy ने बहुत ज़्यादा प्रेशर करा, बहुत ज़्यादा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रन करी हैं, and that has led to this kind of crisis, जहाँ पर वो पैसा instead of creating jobs, it has created much more perverse incentives in the financial sector, which has led to these fault lines. And finally, we'll be talking about what are the consequences of all of this to the US financial sector. तो यहाँ पर वो history है उसकी, कि कैसे US financial sector के अंदर crisis आया. And lastly, we will see that what all are the challenges that still face us. Now, let's talk about the first fault line. अब US के अंदर if you see, the inequality has gone up at a tremendous pace. Between 1976 and 1976 जो टॉप 1% है यूएस के जो सिटीजन्स हैं, उनके पास 9% ऑफ इनकम थी 1976, वेयर एज इन 2007 दे हैड 24% ऑफ इनकम, विच एसेंशली शोज जो टॉप परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, और जो 99% बाकी लोग हैं दे आर नॉट अर्निंग दैट मच. सो दिस इनइक्वालिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. अब ये इनइक्वालिटी आ क्यों रही है? ये इनइक्वालिटी का एक मेजर रीज़न है कि यूएस के अंदर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ है इन दी लास्ट 30-40 odd years दैट it is insufficient for just a mere school graduate or a mere undergraduate degree to get the best of the jobs in the market. तो अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपको वो टॉप 10 परसेंटाइल वाली जॉब्स चाहिए विच ऑल पीपल आर इंटरेस्टेड इन, देन यू नीड टू बी हाईली एजुकेटेड. एंड इसका एक एग्जाम्पल इंडिया से भी है. there is this comment that I have provided. Go through this particular news article which shows that how in 2018 for 93,000 jobs of a PN, even there were 4,000 applicants जो PhDs थे. एक ऐसी जॉब जहां पर फिफ्थ स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का जॉब रिक्वायरमेंट है, वहां पर इंडिया में 4,000 PhDs अप्लाई कर रहे हैं. व्हाई इज दैट
द केस। तो इन जनरल हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत रेज हो गया है, ठीक है। You might be seeing this in competitive examinations as well. At least I see this in UPSC as well, that now a lot of people from diverse backgrounds जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं. So no wonder around 15 lakh students apply करना शुरू कर दें for around 1000 jobs. So this essentially shows that our the amount of skill required even at the lower level jobs has increased. So और अब अगर आपको बेटर स्किल चाहिए टू compete फॉर these jobs, that means you need to have better nutrition. Again, nutrition is something which starts at the age of your birth and till 8-9 years, तो बहुत ज़्यादा important है. एंड वो न्यूट्रिशन कई बार इंडिया के केस में या किसी भी कंट्री के केस में, और वो न्यूट्रिशन अगर इनसफिशिएंट रह जाता है देन उसका लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है. Then socializing skills, early childhood, primary and secondary education. So all of them are extremely important for college education. And if they are weak, then it is very difficult for such students to cope up in higher education. And that is what is one of the problems in the US job market. Now, the politicians there, they do feel that the paychecks of their constituents have kind of have stagnated, but at the same point of time politically जो एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म करने हैं वो एक मेजर रोड ब्लॉक रहा है यूएस के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी. सो सम और ये मेजर पॉलिटिकल probably voting pattern में नहीं आया है. So it is not a voting issue until say Arvind Kejriwal made it a voting issue and has won number of elections just because of his intervention in education and health. So यूजुअली बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स रहते हैं जो स्टेटस क्यू में बिलीव करना चाहते हैं, बिकॉज अगर पब्लिक एजुकेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो प्राइवेट एजुकेशन में कौन जाएगा. तो अगर आपके पब्लिक कॉलेजेस अच्छे हो जाएंगे, if your colleges, if your schools are good, then what will Byju's do, what will Unacademy do? So therefore there are a lot of vested interests if the traditional models of government education are strengthened. तो that is why typically ये strengthen नहीं किए गए हैं. Now what essentially how do the politicians ultimately bribe their constituents? They know that if they somehow are able to keep the consumption of the middle class high, they will be able to get back to power. So stripped of their essentials, the argument is to somehow keep the consumption of the middle class holders up, so that they can afford a new car every few years, they can afford a exotic holiday every few years. तो अगर ये सारे उनको मिलते रहेंगे, they will not complain about things. At the same point of time, to achieve this, what they need to do is provide cheap credit. So all of this is basically to mask credit. तो इनइक्वालिटी है सिस्टम के अंदर. मिडिल, उसके लिए आपको अच्छी जॉब्स चाहिए, जॉब्स के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, और मिडिल क्लास को अगर ये सब नहीं दे पा रहे तो व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट प्रोवाइड देम इजी क्रेडिट, सो दैट वो एटलीस्ट अपने कंज्यूमरिज्म को सपोर्ट कर पाए. एंड दैट हैज बीन the kind of policy tool for the US politicians. And these deep pocketed governments they are in contact with the profit motive of financial sector, and that leads to the creation of fault line. तो easy credit मिल गया, easy credit की वजह से अब फाइनेंशियल सेक्टर ने ऐसे इंसेंटिव्स क्रिएट कर दिए कि कोई भी आके हाउसिंग लोन ले ले, और उसकी वजह से रिस्क. So the first fault line is created because of the US inequalities and the middle class consumerism, which has been promoted by both the politicians as well as the financial institutions. Politicians क्यों? क्योंकि they want to rerun in the elections. And why the financial incentives or financial institutions? Because cheap credit है, plus they are now quite sophisticated in the sense that they can make complex instruments, and they are amoral in nature. So that led to the entire crisis, and this particular fault line
still exists in the US. Coming to the second point where the fault lines still lie. So this consumption which the US was doing was a debt fueled consumption, but debt fueled consumption की लिमिट्स होती हैं. लिमिट्स क्या होती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो अल्टीमेटली प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग अप एंड इन्फ्लेशन विल स्टार्ट शोइंग अप इन द इकोनॉमी. एंड अगर इन्फ्लेशन होगा तो रिजर्व बैंक को क्या करना पड़ेगा, योर क्या कहते हैं, योर सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस फेडरल रिजर्व, उसको इंटरेस्ट रेट्स कम इंक्रीज करने पड़ेंगे और उसकी वजह से अपने आप ही आपकी बोरोइंग और कंजम्पशन कम हो जाएगी. बट इन द लेट 90s and 2000s a significant portion of ये जो US consumerism था was actually met from abroad. तो कंट्रीज लाइक जर्मनी, कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक चाइना, इनके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, स्पेयर सेविंग्स थी. इन्होंने सेव कर करके एक्सेस जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो सप्लाई करना शुरू किया यूएस को. तो यूएस कंज्यूमरिज्म को फ्यूल कौन कर रहा है, ये कंट्रीज फ्यूल कर रही हैं. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू आर एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंज्यूमर, दैट लीड्स टू अ फॉल्ट लाइन. और ये जो कंट्रीज हैं, ये फॉल्ट लाइन कहाँ लाई कर रही है, ये फॉल्ट लाइन लाई कर रही है ट्रेड के अंदर. ये फॉल्ट लाइन लाई कर रही है द कंट्रीज विच आर एक्सपोर्टिंग देयर वे आउट ऑफ प्रॉब्लम. तो जर्मनी जैसी कंपनी, जर्मनी जैसी कंट्री, जापान जैसी कंट्री, they are basically fueling the consumerism of US. Now, जब भी ग्लोबल रिसेशन होगा तो ग्लोबल रिसेशन के केस के अंदर आपका डोमेस्टिक डिमांड लो होगा, you will not be able to export more. So what countries like say Spain, United Kingdom, US, what they did was they ignored the domestic or household indebtedness and they started promoting consumerism. दे इनकरेज इट कि अच्छा और कंज्यूम करना शुरू कर दो, चाहे वो बाहर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, चाहे वो जर्मनी एंड जापान से कंज्यूम करो, बट कंज्यूम मोर, बिकॉज इफ यू स्पेंड मोर अल्टीमेटली दैट इज द वे आउट, यू विल दैट इज द वे that at least politically and economically you might be able to come out of the recession. That was the economic policy. And now if you see, countries like Germany and Japan were structurally inclined to do that, and they are looking for those countries which have the weakest policies of the least discipline, and that is where the fault line lies. कि ये countries जो हैं अपने products excess बना रहे हैं and export कर रहे हैं जहां पर weak fundamentals हैं, उन countries को उन countries के अंदर consumerism बढ़ा के export कर देते हैं. Now the question is, why are so many countries dependent on consumption elsewhere? मतलब countries like Japan, countries like Germany, countries like Korea, ये सारी कंट्रीज ऐसी क्यों हैं जो डिपेंडेंट हैं कि कोई और कंट्री कंजम्पशन करेगा, हम सिर्फ बनाएंगे. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ पाथ. इनका ट्रेडिशनली ग्रोथ पाथ जो रहा है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ रहा है. इनको अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इतना मतलब नहीं है, डोमेस्टिक कंजम्पशन से इतना मतलब नहीं है. These countries have created firms, Japan, China, Korea, इन सब ने, Germany for that example, for Germany. So इन सारी countries ने क्या किया है, ऐसे strong and competitive firms बनाए हैं जिनका main purpose export orientation रहा है. So companies like Canon, companies like Toyota, Samsung, Formosa Plastics, all of these were major companies जिनका main focus जो है efficient export orientation ही रहा है. So जब भी कोई भी financial crisis आता है, all these countries जिनका domestic market छोटा और foreign market बड़ा है, they are completely dependent on the demand which is generated by countries like US, so that they will start consuming and they will pull them from this economic troughs. So ultimately, now there is this symbiotic relationship that is built between countries like Germany, countries like Japan, countries like Korea, countries like China and countries like US. इनको अगर global slowdown चल रहा है, अगर इनको बाहर निकलना है global slowdown से, they have to look for places like US so that they can export here, they can fuel their consumerism and they can get out of any recession.
and this kind of model is unsustainable. This leads to another form of fault line. This will worsen in future. Why this will worsen in future? Because ultimately ये वाली countries भी, जैसे for example countries like China, they will also with time start becoming older, and when they will become older they will also start to depend on consumerism. So this is a major issue which still, from which the world still suffers, and this fault line still exists because of the relationship that exists between these countries. Now the third thing which is still a fault line in the system is, and which again led to this US crisis, is that traditionally countries which were developing were not net exporters. ठीक है, नेट एक्सपोर्टर्स इन द सेंस कंट्रीज, कोरिया और जो ईस्ट एशियन टाइगर्स थे, ये जब फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे थे 80s और 90s में, तब इनका सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा था? इनका सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट वाज कमिंग फ्रॉम जर्मनी एंड जापान, जो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे थे. बट व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट these countries ultimately caused this borrowing that these countries had done had caused the ASEAN crisis. यहाँ पर foreign based borrowings की वजह से यहाँ पर इन countries के अंदर crisis आ गया, and then ये जो crisis आया was majorly because of the incompatibility of two systems. Now, how are these two systems incompatible? Systems of Germany and Japan and systems of countries like Korea and Malaysia. How are these two systems incompatible? In countries like US, UK, इनके अंदर क्या होता है? इनके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इजी एनफोर्सेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की थ्रू द लीगल सिस्टम, एंड जो फाइनेंसर्स हैं जो बेसिकली लोन दे रहे हैं, they know that all of the information is publicly available about their borrowers, and कुछ भी कोई इशू होगा तो courts will be there to protect it. But that is not the case in developing countries. In developing countries government intervention, bank intervention जो है वो बहुत different होता है, information is very limited, judicial system इतना efficient नहीं होता. So how will which particular borrower is safe or not, or how will the lending process will be there, कौन आपका पैसा वापस करेगा, कौन नहीं करेगा, this is a very closely guarded information with only few people know. So that means as an outsider, अगर जापान को या जर्मनी को या यूके को अगर लोन देना है किसी ईस्ट एशियन टाइगर वाली कंट्री को, तो उसके पास कोई एक्सेस नहीं है इन सिस्टम्स का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. देयरफॉर व्हाट नीड्स टू बी डन if these countries want money from these countries like Germany and Japan, for them to give you loans they would want three things. पहले ये करेंगे कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में देंगे, तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को, डेवलप कंट्री, तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए देगा, सो दैट जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम आए एकदम से यू कैन पुल that money back. They want to denominate all the borrowings or all the lending that they are doing in terms of foreign currency, so that यहाँ पर currency inflation और devaluation का risk ना हो. तो whatever their loan they are going to give, they are going to be giving in their own currencies, and then they lend through local banks. So if they were to pull out their money and banks cannot repay, then the government will have to step in and repay that amount. So ये तीन steps जो हैं, these are kind of firewalls which were adopted by the developed countries before they lended out money to the developing countries. This was the model of trade that was prevalent in the 80s and the 90s, and especially fueling the East Asian miracle को fuel करने के लिए यही था. And the problem was that in 1990s East Asia के अंदर, because foreign investors जो हैं उनको तो protection मिल गया कि पहली बात, अगर कोई भी इशू आएगा तो हम पैसा अपना जल्दी से निकाल लेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म डेट दिया है. दूसरा, अगर हमने फॉरेन करेंसी में दिया है. और तीसरा, दैट वी हैव गिवन लोन्स थ्रू लोकल बैंक्स. अगर लोकल बैंक्स फेल होंगे तो सरकार पैसा वापस करेगी.
So because they did not have, there were these so many safety walls and insurance that they had that kept, they had little incentive to see कि हम किसको पैसा दे रहे हैं. As long as the money is going to developing countries, they did not even care कि किसको पैसा जा रहा है, कि वो स्टार्ट, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई स्टार्टअप को पैसा दे रहा है, तो वो ये देख ही नहीं रहे कि वो इंडिया का स्टार्टअप ठीक से काम कर रहा है, उसका कोई बिजनेस पोटेंशियल है कि नहीं है. They were just indiscriminately just lending out money because they were protected by these measures. And similarly, the government had inability and probably incompetence to basically check कि whether the person who is borrowing is an efficient borrower or not. सो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी लैक था एंड बोरोवर को कोई दिक्कत नहीं थी. बोरोवर कह रहा था यार मुझे तो फ्री में पैसा मिल रहा है सस्ते रेट पे, मैं जितना मर्जी ले लेता हूँ. सो दैट लेड टू अनदर क्राइसिस और अ फॉल्ट लाइन इन दिस सिस्टम. एंड this entire and when these countries started to pull back this money, that led to the ASEAN 1997 crisis. After the crisis, these developing countries now knew that they were at because they had to go to IMF कि अच्छा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया. जैसे इंडिया 1991 में गया था, वैसे ये सारी कंट्रीज, आसियान वाली कंट्रीज IMF के पास गई कि वी आर फेसिंग अ स्ट्रक्चरल BOP issue. And then they realize that they will not start borrowing from abroad. So rather than borrowing from abroad to finance their investment and government investment, their government and corporation decided to abandon their grand investment projects and debt fuel in expansion. तो ये जो उनका expansion था, तो ये जो developed countries पैसा पंप कर रही थी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये सोर्स जो है वो बंद होना शुरू हो गया. और क्योंकि ये सोर्स बंद होना शुरू हो गया और ग्लोबल इकोनॉमी को किसी तरीके से आपको रिवाइव करना है, स्पेशली आफ्टर 2001 का .com बबल, तो इन डेवलप्ड कंट्रीज के पास एक ही टारगेट रह गया, विच वाज यूएस के कंज्यूमरिज्म को आप फाइनेंस करना शुरू कर दो. इवन दीज डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड बिकमिंग from net importers of capital, they started becoming net exporters of capital and labor. इन्होंने भी सेव करना शुरू कर दिया और इन्होंने भी अपनी सेविंग्स यूएस के अंदर लगानी शुरू कर दी through those financial instruments. Thus, in the late 90s, developing countries cut back on investment and turned from being net importers to becoming net exporters of both goods and capital, adding to the global glut. तो मार्केट में अब खूब सारा लेबर भी पड़ी हुई है और खूब सारा पैसा भी पड़ा हुआ है, मनी भी पड़ा हुआ है. एंड नाउ इट इज चेजिंग रिटर्न्स, कौन सी कंट्री जो है वो कंज्यूम करेगी. एंड दैट लेड टू स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ. जो स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ का जो पूरा जो वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो यूएस के ऊपर आ गई और उसने अपना कंज्यूमरिज्म को फ्यूल किया. और ये जो जितना भी ग्लोबल ग्लट था, एक्सेस पैसा था, वो यूएस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू. वन ऑफ द फोर्थ इश्यूज which led to this particular crisis and another fault line that has been identified by Professor Rajan is the jobless nature of the recovery that has been there in the US economy both in 1991 and 2001. and post 1991 क्या हुआ कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर थे, जो जूनियर जो अभी 2001 में जो प्रेसिडेंट थे, उनके फादर जो थे, उन्होंने भी इराक वॉर करी थी और वो जीत भी गए थे. एंड डिस्पाइट दैट ही लॉस्ट हिज इलेक्शन बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू क्रिएट इनफ जॉब्स. इससे एक लेसन पॉलिटिशियंस को मिला यूएस के अंदर कि बॉस कुछ भी हो जाए, वी वांट टू शो टू द पब्लिक that jobs have been created, और अगर jobs नहीं कर सकते तो at least give them the comfort कि we are putting in money into the market, you can buy whatever you want. Because of the political reasons and the jobless nature of recovery that was happening in US, there was a lot of pressure on the Federal Reserve and on the government of US to stimulate the economy. And what they ended up doing is they ended up overstimulating the economy, running too loose monetary policies को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में
अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्होंने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड यूएस बहुत ज्यादा इस चीज में क्रिमिनल है। तो इट इज नॉट जस्ट नाउ, आई मीन अगर आप देखो 1991 के बाद तो जो उसने किया, बट 2001 के बाद इसने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी करी, उसका क्राइसिस हो गया फिर 2007 में। फिर उसके बाद फिर से इन्होंने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी करी, और फिर 2013 में जब ये उसको खत्म कर रहे थे तो टेपर टैंट्रम आया। दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड 2013 का टेपर टैंट्रम, यू वुड नो कि ये क्या था। एंड उसके बाद फिर उन्होंने इशू कर दिया, जैसे ही कोविड आया दे हैड दिस एक्सट्रीमली अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज की डेट में इन्फ्लेशन हो रहा है। So they have this habit, so this fault line still exists, and you can write down that in your examination, that this particular fault line still exists, that countries like US, they, because of the political pressure that they are going through, they end up overstimulating the economy in terms of ultra loose monetary policy, and these ultra loose monetary policy creates these perverse incentives in the financial system, and then create asset bubbles. तो जो asset bubble housing के अंदर आया था probably in 2007, right now you are seeing this kind of an asset bubble in stock markets, in case of cryptos, in case of NFTs. तो ये अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, but essentially the reason is the same, कि जब आप jobs create नहीं कर पाते, what you do is you just try to put in more money so that एटलीस्ट कहीं पर फर्म्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे, और फर्म्स एक्सपैंड करेंगे तो वो शायद से जॉब्स और मांगेंगे। दिस हैज बीन detrimental and has been a fault line stemming from the interaction between politics and the financial sector. This is what has been explained. If you see from 1960 till 1991, जितने भी रिसेशंस आए उसके अंदर 2 क्वार्टर के अंदर आपने अपना क्या कहते हैं आउटपुट वापस रीगेन कर लिया, एंड यू गेन दी लॉस्ट जॉब्स विद इन 8 मंथ्स। बट 1991 एंड 2001 की जो रिकवरीज थी, उसमें 3 क्वार्टर में आपने अपना प्रोडक्शन आउटपुट एंड 1 क्वार्टर में प्रोडक्शन आउटपुट वापस रिकवर किया। बट इफ यू सी दी जॉब्स, जहां यहाँ पर 8 मंथ्स में जॉब रिकवरी हो रही थी, यहाँ पर 23 मंथ्स एंड 38 मंथ्स लग रहे थे जॉब रिकवरी में, 3 साल लग रहे हैं जॉब रिकवरी में। एंड दिस वाज अ मेजर पॉलिटिकल इशू, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं यूएस के अंदर, वो टिपिकली सिर्फ 6 मंथ्स तक लाई करते हैं। इफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दैट इज अ मेजर रीजन दैट दे विल स्टार्ट वोटिंग differently. And this wrath was faced by, as I told you, this wrath was faced by the first George president, George W. Bush Sr. And despite winning the war, he lost the re-election campaign. That led to this particular incident showed the US politicians that they need to go that extra mile in providing support to the economy, and which is desired by their electorate, and they promoted excess spending and impaired government's long-term health. So ultimately what this particular book also says is that the US monetary policy is influenced by these political considerations. And as I've told you, even in times of COVID, this is still influenced by these political considerations, which is why you see such large asset bubbles that have been made. And stock markets जो हैं वो उस टाइम पे ओवर परफॉर्म करें, and you have these financial bubbles and new kinds of instruments that are, because there was so much of pressure on the Federal Reserve to keep the interest low. तो Federal Reserve ने क्या किया, पंप इन मनी, अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी करी। अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जिनके पास जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या सर्च करेंगे, these investors will start searching for instruments की कहाँ पर हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो they started for looking for mortgage backed securities, credit default swaps, collateralized debt obligations. They started looking at housing, they started looking at stock markets. तो जहां उनको higher returns मिल सकता है वो they were going and trying to find those higher returns there. एंड प्लस साथ में 2003 से 2006 के बीच में द गवर्नमेंट वाज आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग,
and all of that led to huge money being pumped into the housing market, and जिसकी वजह से एसेट हाउसिंग प्राइसेस ऊपर इंक्रीज हुए अनसस्टेनेबली. And once the Federal Reserve realized that they cannot keep these interest rates too low for too long, they started increasing it, and ये housing bubble जो है collapse कर गया. Now what have been the consequences of these fault lines to the US financial sector? Now because of this enormous flow of money जो low income housing में जा रहा था, and it was coming not just from US, remember this money was now also coming from other parts of the world. ठीक है. So because of all the money US generated भी और बाहर से भी जो पैसा आ रहा था, they were sponsoring these mortgage backed agencies like Fannie Mac and Freddie Mac. ये basically गवर्नमेंट, यू कैन इमेजिन कि ये गवर्नमेंट की लो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस करते थे. एंड because the housing prices were increasing unsustainably, this led to the deterioration of the quality of mortgage loans made. तो ये जो कंपनी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक्चुअली delinquent नहीं थी. It was ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं कर रही थी ये कंपनी, and ये they were giving loans to those ninjas, and that is where the problem started. Even now remember इंटरेस्ट रेट मार्केट में लो चल रहा था क्योंकि अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है. तो कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स स्टार्टेड टेकिंग मोर रिस्क. दे स्टार्टेड venturing out into new financial instruments. They started going and buying these low quality securities issued to finance subprime house mortgages. ये क्योंकि हाई रिटर्न्स के लिए अब जितना सब प्राइम होगा, जितना रिस्की होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको. तो जस्ट टू गेट मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दीज सिक्योरिटीज, और इन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए दे हैड टेकन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म लोन्स. अब ये पूरा जैसे ही ये सब प्राइम की जो एसेट्स हैं ये गिरने शुरू हो गए, तो इन बैंक्स, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अपना शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो उन्होंने उठा रखा था ये पे बैक करने के पैसे नहीं बचे. एंड दैट इज हाउ यू सी दी फॉल ऑफ लीमन ब्रदर्स, और बैंक्रप्सी डिक्लेयर्ड बाय AIG, बैंक्रप्सी डिक्लेयर्ड बाय Fannie Mac and Freddie Mac, बैंक्रप्सी डिक्लेयर्ड बाय से सिटी ग्रुप. तो ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं बैंक्रप्ट हो गए बिकॉज दे हैड केप्ट अ लॉट ऑफ दीज एसेट्स, these toxic assets on their balance sheets as well. Another problem was that ये जो foreign investors थे, remember that example of Germany का dentist जो was investing in US, they were excessively relying on the credit ratings which were provided by Moody's या S&P या CRISIL की sorry CRISIL तो इंडिया में है, but Moody's and S&P की जो ratings हैं उन पे rely कर रहे थे, and that led to again this crisis ki these instruments were not properly priced. So the ratings and the market prices by the system were not corrupted, and because of this these institutions again had provided wrong information which led to distortion of the financial markets. And one of the problems of this particular crisis was that there was a bad incentive structure. There was this moral hazard whereby the bankers जो ये financial instruments के अंदर invest कर रहे थे उनको खूब सारा profit हो रहा था, but in a very small case अगर loss हो जाता था तो बहुत बड़ा loss हो जाता था. So they did this cost benefit analysis and they did not see it through कि अगर loss हो गया तो loss epic proportions का होगा. So the incentives of the bankers were not properly devised, जहां पर they were rewarded to take excessive risk because उनके commissions इस चीज पे based है, and that is what led to the entire problem. So the US after the financial crisis, the US regulators came together and they capped the bonuses of bankers, but that is just a tip of the iceberg. There is a lot that needs to be done. जो हमने अभी बात करी ऊपर, बहुत सारी चीजें और आपको रिजॉल्व करनी है. This is just the tip of the iceberg where the crisis started happening.
but there are other things that you need to correct if you want to avoid another crisis of this sort. So all of these reasons, bankers, politicians, the poor जो घर खरीद रहे हैं, foreign investors, economists, central bank, all of them were responsible, whereas regulating the bonus check is only a partial solution, but there needs to be a wholesale reform that needs to be done in this particular area. And then comes the challenges that face us. How will be able to wean off from the dependence of exports? How can we make the financial sector more risk averse? So all of these things needs to be done. How can we protect the household during recession so that they don't end up in so much of debt? All of these things need to be taken care of, and these challenges needs to be resolved if you want to safeguard yourself from another crisis. And in the end, what needs to be seen is that good economics cannot be divorced from good politics. Both of them have to go together, and that is why we call this field as political economy. So politics and economics cannot be separated from each other, and if we want to achieve a stable financial sector, we need to have both of them in tune with each other.